یہ میری زندگی کی حقیقی کہانی ہے۔ خالہ نادرہ کی 3 جوان بیٹیاں تھیں۔ بڑی بیٹی کی شادی ہونے والی تھی۔ ایک روز تینوں بہنیں شادی کی شاپنگ کے لیے بازار گئیں مگر واپس نہ لوٹی۔ پورے محلے میں یہ بات پھیل گئی کہ خالہ کی تینوں بیٹیاں گھر سے بھاگ گئی ہیں۔ کئی سال گزر گئے مگر وہ نہ ملیں۔ ایک روز خالہ کو ایک خط ملا جسے پڑھ کر ان کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے اور جن خاتون کی حقیقی زندگی سے تعلق رکھتی ہے میں انہی کی زبانی بیان کر رہی ہوں۔ کہانی میں اصل ناموں کی جگہ فرضی نام استعمال کیے گئے ہیں۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ یہ کہانی میں اپنے پرانے محلے دار کے بارے میں لکھ رہی ہوں۔ خالہ نادرہ عرصے سے ہمارے محلے دار اور میری والدہ سے ان کی کافی اچھی بنتی تھی۔ وہ اپنے بچوں کے ساتھ کافی اچھی اور خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ ان کا اپنا 10 مرلے کا 2 منزلہ مکان تھا جو ان کے شوہر نے خاص توجہ سے بہت شاندار بنوایا تھا۔ شوہر کی نوکری بھی اچھی تھی، لہٰذا گھر میں کوئی تنگی دستی نہ تھی۔ ان کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ سمجھدار خاتون تھی، اس لیے کفایت شعاری سے گھر چلاتی۔ وہ اچھی سلائی کڑھائی جانتی تھی جس کے چرچے پورے محلے میں تھے، لہٰذا فارغ وقت میں اس ہنر سے بھی اچھی رقم کما لیتی تھی۔ تینوں بیٹے بڑے تھے جب وہ بھی کمانے لگے تو خالہ کو ان کی شادیوں کا ارمان ہوا۔ بڑے بیٹے کے لیے بڑے شوق سے بہو تلاش کرنے لگیں۔ ایک گھر سے انہیں لڑکی پسند آ گئی مگر ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں اپنی 2 بیٹیوں کی ایک ساتھ شادی کرنی ہے، دوسری کے لیے بھی ہم رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ آپ کے دوسرے بیٹے بھی جوان ہیں، ہمیں آپ لوگوں کی عادت و اطوار بھی بہت اچھے لگی ہیں، لہٰذا اگر آپ اپنے دوسرے بیٹے کے لیے بھی ہماری بیٹی کا رشتہ لے لیں۔ ان کی چھوٹی بیٹی تو بڑی سے بھی زیادہ خوش اخلاق تھی، لہٰذا خالہ نے سوچا کہ اور نہیں تو سال بعد دوسرے بیٹے کی بھی شادی تو کرنی ہی ہے، یہ اچھے لوگ ہیں، کیوں نہ دوسرے کا بھی ادھر ہی کر دوں۔ یوں دونوں کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی اور پھر خالہ خوب ارمان پورے کر کے بہوؤں کو بھیا لائی۔ بہویں آئیں تو کچھ دن وہ سکون سے رہیں، پھر گھر کے انتظام کو بگاڑنا شروع کر دیا۔ اپنے شوہروں کے سامنے تو ٹھیک رہتی مگر پیچھے سے ساس اور نندوں کو تنگ کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑتی۔ ماں باپ نے بھی اب کے آنکھیں ماتھوں پر سجا لی کہ ہماری بیٹیاں تو جو کرتی ہیں ٹھیک کرتی ہیں۔ اس پر یہ کہ تیسرے بیٹے نے بھی اسی گھر سے اس کی تیسری بیٹی پسند کر لی اور اب ضد لگا دی کہ میں شادی کروں گا تو اسی سے۔ خالہ نہیں چاہتی تھی کہ اب تیسری بہو بھی اسی گھر سے آئے اور پھر تینوں بہنیں مل کر ان کا جینا حرام کر دے۔ انہوں نے بیٹے کو کافی سمجھایا، وہ تو گھر چھوڑ کر جانے کی دھمکی دینے لگا۔ تبھی خالہ نے تیسرے کے لیے بھی اسی گھر سے بہو لے آئیں۔ وہ اس سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلی۔ اب تینوں بہنیں کوئی کام نہ کرتیں اور اپنی آرام طلبی سے سبھی کو بے سکون کرنے لگیں۔ گھر کا سارا نظام جو پہلے خالہ خوش اسلوبی سے چلاتی تھی، بہوؤں کی ملی بھگت سے اسے دھرم بھرم کر ڈالا۔ دراصل ان کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ ساس اور نندوں سے علیحدہ اپنی مرضی کی زندگی بسر کریں۔ ان کا خیال تھا کہ کہاں ساس کہتی رہتی کہ ابھی بہنوں کی شادی کرنی ہے، بلکہ ہمارے شوہروں کی کمائی پر تو بس ہمارا حق ہے، لہٰذا یہ کمائی ہماری مرضی سے ہی خرچ ہونی چاہیے۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ روز ہی جھگڑے ہونے لگے۔ خالہ اکثر ہمارے گھر آ کر میری امی کو بہوؤں کی کارستانی سنا کر روتی تھی۔ جب چپکلش زیادہ بڑھ گئی تو خالہ نادرہ نے اپنی اور اپنے بچوں کی عافیت اسی میں جانی کہ بہوؤں کو الگ کر دے۔ وہ تینوں سگی بہنیں تھیں اور ان کا گٹھ جوڑ مضبوط تھا، لہٰذا انہیں ہتھیار ڈالنے ہی پڑے۔ خالہ کے شوہر یعنی انکل بھٹی نے یہ فیصلہ کر دیا کہ بیٹے اور بہویں اسی مکان میں رہیں اور وہ اپنی بیوی اور بچیوں کو لے کر دوسرے مکان میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ انکل کا یہ دوسرا گھر مکان نزدیکی محلے میں تھا جو کرائے پر تھا۔ مکان کرایہ دار سے خالی کروا لیا گیا اور خالہ اپنے شوہر اور بچیوں کے ساتھ 5 مرلے کے اس گھر میں منتقل ہو گئی۔ یہ مکان بھی اچھا بنا ہوا تھا اور 2 منزلہ تھا۔ نچلے پورشن میں 2 کمرے اور صحن بما برآمدہ اور اوپر کے پورشن میں بھی 2 کمرے، کچن، صحن اور واش روم وغیرہ بنے ہوئے تھے۔ علیحدگی کے بعد بیٹے اپنی بیویوں کے ہمراہ خوش و خرم زندگی بسر کرنے لگے۔ اب وہ اپنی کمائی اپنے پاس رکھتے تھے، بس کبھی کبھار ماں باپ سے ملنے آ جاتے تھے۔ نادرہ خالہ کو ان سے علیحدہ رہ کر تو دکھ تو بہت تھا، لیکن سکون کی خاطر اس جدائی کو سہنے کے سوا اب کوئی چارہ نہ تھا۔ بیٹے خوش تو ماں باپ بھی خوش، بس انہوں نے اسی فارمولے پر عمل کیا۔ بہوؤں کو تو ان کا اپنا گھر میں آنا بھی پسند نہیں تھا، بس وہ کبھی عید، تہوار یا پھر پوتا پوتی کی سالگرہ وغیرہ پر چلے جاتے اور حسب استطاعت ان کے لیے کھلونے اور تحفے بھی لے جاتے۔
इन्हीं दिनों अंकल भट्टी मुलाजमत से रिटायर हो गए और अब पेंशन पर आ गए। वो सारी उम्र की जमा पूंजी से बस ये 2 मकान ही बनवा पाए थे और अब बुढ़ापा सर पर आ गया था। दोनों मियाँ बीवी को अभी 3 बेटियों की शादियों की फिक्र थी और वैसे भी बूढ़े वालदेन के कांधों पर जवान बेटियों का बोझ बहुत भारी हुआ करता है। खुदा की करनी के एक रोज़ खालू की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। शायद उनको दिल का दौरा पड़ा था। अस्पताल तक जाने की नौबत ना आई और वो रास्ते में ही अल्लाह को प्यारे हो गए। वहाँ डॉक्टरों ने बताया कि इनका हार्ट फेल हो जाने से इंतकाल हो चुका है। चंद दिन तो सोग में गुजरे। जब होश आया तो पता चला कि सर से साहिबान तो उठ चुका है और जरिए आमदनी भी कोई खास नहीं है। बेटों से भी कोई उम्मीद नजर ना आई। खाला सिलाई तो पहले भी करती थी, बेटियों को भी ये हुनर सिखा चुकी थी। अब घर गुजर बसर के लिए वो सब मिलकर सिलाई करती, जिससे घर का गुजारा कुछ बेहतर होने लगा। लेकिन नादरा खाला बच्चियों की शादी की फिक्र में गुली जाती थी। इधर नालायक बेटे थे जो बीवियों के गुलाम बनकर रह गए थे, लिहाजा इनसे भी इस सिलसिले में उन्होंने कोई खास उम्मीदें नहीं लगाई थी। तभी उन्होंने सोचा कि ऊपर का पोर्शन जो खाली पड़ा है क्यों न उसे किराए पर उठा दिया जाए। इस तरह एक मुस्तकिल जरिया आमदनी भी निकल आएगा। अब इन्हें किराए के लिए एक शरीफ और मुख्तसर कुंबे की तलाश थी। इस सिलसिले में मोहल्ले के कुछ लोगों से भी कहा। कुछ दिनों बाद इन्हें बतौर किराएदार एक मियाँ बीवी मिल गए, जिनकी शादी को 10 साल हो चुके थे, मगर बे औलाद थे, मगर काफ़ी बशरीफ लगते थे। एक मोहल्लेदार ने ही इनका तारुफ खाला नादरा से करवाया था। ये लोग पिशावर से आए थे और पिंडी में इस शख्स यानी जमान खान का कारोबार था, लिहाजा वो शहर में एक मकान की तलाश में थे। यूं मियाँ बीवी से मुख्तसर गुफ्तगू के बाद खाला नादरा को ये लोग पसंद आए और उन्होंने उनको अपने मकान के ऊपर का पोर्शन किराए पर दे दिया। जमान खान की बीवी का नाम गुल लाला था, जो कि बहुत मिलनसार और खुश इखलाक किस्म की खातून थी। दोनों मियाँ बीवी औलाद ना होने पर दुख तो करते, मगर दोनों में बेपनाह मोहब्बत थी। जमान खान चूंकि फ्रूट का काम करता था, लिहाजा वो रात को घर आते हुए काफ़ी फ्रूट लाता था, जो कि गुल लाला की ज़रूरत से ज़्यादा होता था। तभी वो आधा फ्रूट खाला नादरा को दे देती। इसी तरह जमान खान जो भी खाने पीने की चीज़ें घर लाता, वो ज़्यादा मकदार में होती और इसकी बीवी इन में से काफ़ी कुछ अपनी मालिक मकान को दे देती। अगर कभी खाला उसे इतना तकलीफ़ करने से रोकती तो वो कहती, खाला जी रख लें, मेरा शौहर आपको अपनी माँ की जगह और आपकी बेटियों को अपनी बहनें समझते हैं। वो कहते हैं कि खाने पीने की चीज़ों में हमसाए साझे होते हैं, इसी वजह से वो ज़्यादा ले आते हैं। गरज वो अगर कोई अच्छी चीज़ घर बनाती तो वो भी खाला के घर ज़रूर भिजवाती। जमान खान भी इन्हें माँ जैसी इज्जत देता और इनकी बेटियों को अपनी बहनें कहता। यूँ जल्द ही ये मियाँ बीवी अपनी मालिक मकान और इनकी साहबजादियों से घुल मिल गए। इनकी बेटियां भी समान खान को भाई कहकर बुलाती। खाला खामोश थी कि इतने अच्छे किराएदार मिल गए हैं। खाला अक्सर इन लोगों को ऊंची नीची मसाइल भी बताती, शिकवा करती कि सगे बेटों ने बीवियों के चक्कर में माँ और बहनों को अक्सर बुला दिया है और बेवगी में भी माँ का साथ छोड़ दिया है। तब जमान खान इनसे कहता कि अम्मा जी आप मुझे ही बेटा समझ लें। यूँ खाला ने जमान खान के अच्छे इखलाक को देखते हुए उसे अपना मुंह बोला बेटा बना लिया। अब वो अपने तमाम मसले मसाइल इसी को बताती और वो अक्सर इन मसलों को हल भी कर दिया करता था। खाला अपने सभी दुख सुख मियाँ बीवी की गोद में डालकर खुद गोया हल्की पुल्की हो जाती थी। खाला अब बेटियों के रिश्तों की तलाश में थी, क्योंकि बेटों ने तो साफ कह दिया था कि हम तो अपने कारोबार में बहुत मसरूफ़ होते हैं, अम्मा तुम खुद ही ढूंढ लो। एक रोज़ मोहल्ले की एक औरत के ज़रिए खाला की बड़ी बेटी सादिया का रिश्ता आ गया। इनको लड़की पसंद आ गई। खाला हर बात में जमान और उसकी बीवी से मशवरा करती थी। इससे तस्करा किया तो उन्होंने कहा कि अगर अच्छा घर और ठीक लड़का है तो सोच विचार किस बात की है, रिश्ते के लिए हाँ कह देते हैं। खाला कहने लगी, सोच विचार यह है कि ये लोग खाते पीते हैं, बेटी का जहेज भी बनाना है और शादी का खर्चा समझ नहीं आती ये सब कहाँ से आएगा। जमान खान कहने लगा, अम्मा आपने मुझे बेटा कहा है तो फिर ये बेटा आपके लिए किस दिन काम आएगा। बस जो कुछ पसे अंदाज की
किया है, इससे मुनासिब जहेज खरीद लें और बाकी की रकम मैं डाल दूंगा। कमी बेशी पूरी हो जाएगी, आप सबकी फिक्र ना करें और रिश्ता तय कर लें। मैं जो रकम आपकी बेटी की शादी पे दूंगा वो किराए से काटता रहूंगा। इस बयान से खाला को काफी ढारस मिली और वो जैसे जी उठी। खुदा का शुक्र अदा किया और अच्छा किराएदार मिला था। किसी बेवा को ऐसे मसाइल में कोई सहारा दे तो वो क्यों ना मशकूर हो। आप जहेज का सामान खरीदने का मरला था। खाला ने गुले लाला से कहा कि बेटी सामान वगैरह की खरीदारी में तुम भी साथ चलो, क्योंकि मुझे तो खरीदारी का ज्यादा तजुर्बा नहीं है, मिलकर मशवरे से खरीदेंगे तो अच्छा रहेगा। गुल्लाला कहने लगी, खाला जी हमें पसंद या नापसंद से ज्यादा लड़की की पसंद जरूरी है। आखिर इसकी चीजें हैं तो इसी की पसंद से होनी चाहिए। सादिया को भी साथ ले लेते हैं। मैं माँ ने इस बात से इत्तेफाक किया। सादिया एक रोज तो बर्तनों वगैरह की खरीदारी के लिए माँ और गुल्ले लाला के साथ बाजार गई। अगली बार जब कपड़ों की खरीदारी के लिए जाना था तो कहने लगी, मैं तो बाजार में इतना चल फिर नहीं सकती। गुल्ली लाला, बेटी आज तुम और सईदा ही चले जाओ। जब वो जाने को तैयार हो रही थी तो दूसरी दोनों बहनों ने भी फरमाइश की कि हम भी साथ चलेंगे। बाजी हमेशा कपड़ों के मामले में हमारे मशवरे पसंद को अहमियत देती है। इन्हें खुद अच्छे कपड़े तो खरीदने आते नहीं, हर दफा हमारी पसंद के ही पहनती हैं। माँ ने कहा, अच्छा तुम लोग भी साथ चले जाओ। यूं तीनों बहनें गुले लाला के हमरा जहेज के कपड़ों की खरीदारी को निकली। तो जमान ने पूछा कि आप लोग कैसे जा कैसे रही हैं। इसकी बीवी ने जवाब दिया, हम बैगन पर चली जाएंगी। जमान खान कहने लगा, तुम लोग बैगन में कहाँ थके खाती फिरोगी। ऐसा करो, तुम लोग बस स्टॉप तक चलो और मैं अपने एक दोस्त को गाड़ी के लिए इस्तेदाद करता हूँ। अगर मुझे गाड़ी मिल जाती है तो फिर मैं बस स्टॉप आ जाऊंगा। वासी में तुम लोगों के पास खरीदा हुआ सामान भी होगा, लिहाजा गाड़ी होगी तो आसानी हो जाएगी। बुर्का पहनकर ये चारों खवातीन बस स्टॉप पर पहुंची। खाला ने रकम गुल्लाला को दे दी थी कि तुम उसे अपने पर्स में रखना, ये बच्चियां हैं कहीं गिरा ही ना दे। अब वो चारों बस स्टॉप पर इंतजार कर रही थी। तभी जमान खान अपने दोस्त की गाड़ी लेकर आ गया। गाड़ी इसका दोस्त ही चला रहा था और इसके साथ जमान खान भी बैठा हुआ था। इसने खुश होते हुए एक बार फिर से बीवी से कहा, शुक्र है गाड़ी मिल गई। बस पर ख्वार होने की बजाय गाड़ी पर बैठ जाओ, क्योंकि गुली लाला भी हमरा थी। लिहाजा तीनों लड़कियां भी बिला तामुल इसके साथ बैठ गई। जमान खान बराबर की निशिस्त पर आगे बैठा था और इसका साथी कार ड्राइवर कर रहा था और वो चारों पीछे एडजस्ट होकर बैठ गई। अब गाड़ी फराटे भरती जा रही थी और लड़कियां आपस में बातें करने में मसरूफ थी। वो बेचारी भी ज्यादा घर से बाहर नहीं निकली हुई थी। उन्होंने नजर भर कर भी सड़क की तरफ ना देखा कि वो किधर जा रही हैं, और दूसरा कोई गलत ख्याल तो इनके वहम गुमान में भी ना था। जब काफी फासला तय हो गया तो सादिया को एहसास हुआ कि वो तो किसी अनजान रास्ते पर रवा दवा है। इसने चौंक कर सवाल किया, हम किधर जा रहे हैं। इस पे जमान खान ने कहा कि हम पिशावर जा रहे हैं। तुम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कपड़े खरीदने हैं। वहाँ कुछ दुकानें मेरे वाकिफकारों की है जहाँ से कपड़े सस्ते और आला दर्जे के मिलेंगे। हम लोग कम पैसों में उम्दा खरीदारी कर सकेंगे। मेरे ये दोस्त जो साथ है इसकी वहाँ कपड़ा मार्केट में 4 दुकानें हैं। ये लड़कियां तो बचियां थी। वो खुश हो गई कि जमान भाई इनके खैर ख्वाह है, लिहाजा इनका अच्छा ही सोच रहे हैं। जब इनकी बीवी साथ है तो खतरा किस बात का है। दोनों मियाँ बीवी के इनके साथ ताल्लुकात ही इतने अच्छे और हमदर्दाना रहे थे कि किसी किस्म का शक व शोबा तो लड़कियों के जहनों में दमका तक ना था। जब वो पिशावर पहुंचे तो गाड़ी एक बड़े से घर के सामने रुकी। गाड़ी के हॉर्न पर चौकीदार ने गेट खोल दिया और फिर जमान खान इनको अंदर ले गया। जमान खान ने इनसे कहा था कि लंबा सफ़र करके सब थक गए होंगे, इसलिए ये मेरे दोस्त का घर है, चलो थोड़ी देर यहाँ पहले आराम कर लेते हैं, खाना वगैरह खा लेते हैं, क्योंकि घर गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। इसके बाद फिर ख़रीदारी को चलते हैं। और ख़रीदारी में भी हमें कौन सा ज़्यादा टाइम लगना है, क्योंकि हमने तो मेरे इस दोस्त के दुकानों से ही ख़रीदारी करनी है, जहाँ हमें मुनासिब रेट पर अच्छे कपड़े मिल जाएंगे। इसने इन सबको एक कमरे में बिठाया और कुछ ही देर में मुलाजमा ठंडा पानी ले आई और फिर खाना वगैरह मेज़ पर रख दिया गया। गुले लाला वॉशरूम में फ्रेश होने गई थी। आते ही इसने कहा, जल्दी जल्दी खाना खा लो ताकि फिर बाजार चले। में वापस भी जाना है, कहीं देर ना हो जाए। सफ़र के बाद भूख तो सबको महसूस हो रही थी। तीनों बहनें खाना खाने लगी और गुले लाला अपने शोहर के पास दूसरे कमरे में जाकर बातें करने लगी, जिसकी खिड़की इस कमरे के पास ही थी और ये भी मालूम हो रहा था कि वो दोनों बातें कर रहे हैं। वो कह कर गई थी कि तुम लोग खाओ, मैं बस आ रही हूँ। खाना खा चुकने के बाद जब उन्होंने गुलेराया को पुकारा मगर आगे से कोई जवाब ना मिला,
2-3 बार पुकारने पर भी आगे से सिर्फ खामोशी थी। तभी एक बहन ने कमरे से बाहर झांकने की खातिर दरवाज़ा खोलना चाहा तो पता चला कि बाहर से तो कुंडी है। अब वो तीनों परेशान हुई कि ये क्या चक्कर है। उन्होंने दरवाज़ा पीटा मगर कोई जवाब ना मिला। वो खिड़की की तरफ आई, उसे खोल कर झाँका। वहाँ गुले लाला या इसका शोहर तो ना थे, मगर बाहर एक मुलाजमा मौजूद थी। इस हट्टी-कट्टी मुलाजमा ने कहा, अरे शोर ना मचाओ, क्यों घर सर पे उठा रखा है? जिन लोगों को तुम आवाज़ें दे रही हो वो लोग तो चले गए हैं और अब तुम लोग हैबत खान की कैद में हो। वो कल यहाँ आएगा तो ही तुम्हें खोलेगा। अब खामोशी से इधर बैठ जाओ या सोए रहो। ये सुनते ही लड़कियों की जान निकल गई। इन्हें यकीन ना आता था कि जमान भाई और गुले लाला इनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। इनको तो यकीन ही ना आ रहा था। वो ये सोचकर दिल को समझाने लगी शायद वो थोड़ी देर को कहीं गए हैं, क्योंकि इनका घर भी पेशावर में ही था। इनके यहाँ रिश्तेदार वगैरह भी होंगे, हो सकता है इनसे मिलने गए होंगे। बस इसी इंतज़ार में शाम से रात हो गई, मगर इन लोगों को ना आना था सो ना आए। दर हकीकत इनका ताल्लुक बर्दाए फरोश लोगों से था और एक नहीं 3 जवान साला खूबसूरत लड़कियां इनके हाथ लग चुकी थी। लिहाजा उन्होंने बेचकर दाम खड़े कर लिए और खुद गायब हो गए। उन्होंने इस मुलाजमत से मिन्नत समाजत की कि वो इन्हें यहाँ से निकाल दे, मगर वो ऐसी सख्त मिजाज थी कि इन पर तरस खाने की बजाय इन्हें खूब बातें सुना दी और कहने लगी, अब हैबत खान ही तुम लोगों को आखिर खोलेगा। मैं क्यों नहीं कर सकती थी? मैं कुछ नहीं कर सकती, लिहाजा अब तुम लोगों के रोने धोने या शोर मचाने का कोई फायदा नहीं। रात भर लड़कियां बेचारी रोती रही, लेकिन जो कुछ भी नहीं कर सकती सिवाय इंतजार के। तमाम रात जागती रही और अल्लाह से दुआएं करती रही। माँ की फिक्र भी कि ना जाने इस बेचारी पर क्या बीत रही होगी। सुबह हुई तो हैबत खान आ गया। वो बेहद करख्त और जालिम किस्म का शख्स था। इसने लड़कियों को दहशतज़दा करने के बाद अपने कुछ साथियों के हवाले कर दिया, जिनके पास काफ़ी हथियार थे। इसके साथ ही इन्हें वतन के सरहद से पार ले गए और इन लोगों को कोई रोकने टोकने वाला ना था। लड़कियों का दहशत से बुरा हाल था। अब इन तीनों को यकीन हो गया था कि अब वो कभी अपने घर ना लौट सकेंगे और अपनी माँ से नहीं मिल सकेंगी, क्योंकि उन्होंने ऐसे कई वाक़े सुन रखे थे जब उर्दा फरोश लड़कियों और बच्चों को आगे बेचने के लिए दूसरे मुल्क स्मगलिंग कर देते हैं। और फिर खुदकारों के वाक़यात तो आम थे। आए दिन ऐसे वाक़यात अखबारात में छपते रहते थे। रात होगी तो अजनबी मर्दों के साथ कहाँ से कहाँ पहुंच चुकी थी। न जाने वो लोग इन्हें कहाँ ले जा रहे थे, जो कि असले से लेस थे और तादाद में भी काफ़ी थे। जबकि लड़कियां बेचारी तो बेबस थी। वो खौफ से एक लफ्ज़ ना निकाल पा रही थी और कुली तौर पर इनके रहमो करम पर थी। इधर जब रात हुई मगर बेटियां घर ना लौटी तो खाला नादरा को तशवीश हुई। इस दौर में मोबाइल फ़ोन इतने आम ना थे, लिहाजा वो जमान खान को फ़ोन भी नहीं कर सकती थी। वो बार बार गेट के चक्कर लगाते सोच रही थी, जाने गुले लाला और जमान खान इनको किधर शॉपिंग करवाने ले गए हैं। रात हो गई मगर बेटियां ना लौटी और ना किराएदार। अब वो सोचने लगी, एक काश मैं इन्हें अकेले ना भेजती, साथ खुद चली जाती। खाला बेचारी अब पछताने और हाथ मलने लगी कि 3-3 बेटियां गायब थी और ना किराएदार। मियाँ बीवी का ही कोई आता पता था। इनके दिल में बार बार ये गुमान आ रहा था कि कहीं इनके साथ कोई हादसा ही ना पेश आ गया हो। रात के 12 बज गए मगर कोई वापस ना लौटा। खाला को अपनी बेटियों की भी इत्तला देने की हिम्मत ना हो पा रही थी कि वो इन पर बरस पड़ते कि माँ तुमने अनजान लोगों के साथ बेटियों को अकेले कैसे भेज दिया। एक तरफ तो इन बेटियों की फिक्र हो रही थी और दूसरी तरफ ये खौफ आ रहा था कि बेटों को क्या जवाब दूंगी। सुबह तक खाला की हालत कहर हो गई। खुदारा क्या हुआ है? क्या इन्हें कोई संगीन हादसा पेश आ गया है? इनके पैरों तले जमीन खिसकती महसूस होने लगी। वो दौड़ती हुई कभी एक पड़ोसी के घर तो कभी दूसरे पड़ोसी के घर गई, मगर कोई क्या इस सिलसिले में मदद कर सकता। हर किसी ने कहा कि शाम तक इंतजार करो, अगर शाम तक नहीं आती तो थाने जाकर रिपोर्ट लिखवा देते हैं। कयामत की रात और दिन बेचारी बेवा पर बहुत भारी थी। वो पल पल मरती जीती थी और जवान बेटियों के लौट आने की दुआएं करती थी। जब इस रोज़ भी वो ना लौटी तो मजबूरन खाला अपने बेटों के पास गई और उनको तमाम अहवाल से आगाह किया। भवे तो सास से तरह तरह के सवालात कर रही थी। 2 बेटे खाला के सामने साथ आए और इनके हमरा थाने रिपोर्ट दर्ज करवाने गए। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। ऐसे मामलात में पुलिस भी अक्सर नाकाम रहती है और कुछ दिन तो बस चक्कर
देती रहती है। कुछ दिनों की भागदौड़ के बाद पुलिस भी कुछ ना कर सकी, लड़कियों का सुराग लगाने में नाकाम रही। माँ के दुख का किसी को क्या अंदाजा हो सकता है कि जिसकी 3 जवान साला गैर शादीशुदा बेटियां गायब हो चुकी हों, जिस बेवा ने दिन रात मेहनत करके इज्जत की जिंदगी बसर की हो। आखिरी उम्र में शकीउल कलब किराएदार ने एतमाद की फिजा बनाकर इनकी इज्जतों को नीलाम चढ़ा दिया था। खाला को तो अभी ये भी समझ नहीं आ रही थी कि इनकी बच्चियों के साथ कोई हादसा पेश आ गया है या वो कहीं फंस चुकी हैं। हमें भी इन्हीं दिनों मामला हुआ कि नादरा खाला की बेटियां गायब हो गई हैं, और बहुत दुख भी हुआ। मैं हर नमाज में इनके लिए दुआ करती। खाला बेचारी अब दिन रात दीवारों से टकरे मारती, मगर टकरे मारने से तो सिर्फ अपना सर ही जख्मी होता है। खाला ने गली गली की खाक छान ली, मगर इनकी बेटियों का कहीं सुराग ना मिला। तमाम मोहल्ले वाले तसल्ली देते थक गए, मगर इन्हें तसल्ली ना हुई। वक्त गुजरता रहा। खाला का एक बेटा और बहू इनके पास आकर रहने लगे। वो भी आखिरकार इनकी गमगुसारी कर करके थक हार गए थे और अपने अपने काम धंधों में लग गए। आखिरकार इन्हें रोजी भी तो कमानी थी। कब तक खोई हुई बहनों को तलाश करते, जबकि इन कामों के लिए बहुत पैसा चाहिए और इनके पास इतना सरमाया कहाँ था। एक रोज अचानक डाकिये ने इनके घर एक खत ला कर दिया, जिसे खाला ही ने मौसूल किया। शायद के कोई आवा बका और दिन रात की दुआएं रंग ले आई थी। ये खत इनके दरमियान वाली बेटी जैनब का था। इसने इसमें तमाम अहवाल माँ को लिखे थे कि कैसे जमान खान और उसकी बीवी इन्हें पिशावर ले गए और फिर कमरे में बंद करके चले गए थे। फिर किसी बुर्दा फरोश लोगों ने इन्हें सरहद पार ले जाकर फरोख्त किया। इसने मजीद लिखा कि मुझे सादिया बाजी और मारिया के बारे में कोई इल्म नहीं है कि वो कहाँ हैं और किस हाल में है, लेकिन मुझे मशरे के बस्ती के एक अमीर आदमी ने खरीद लिया था और वह मुझे अपने साथ ले आया था। मैं उसे शायद पसंद आ गई कि इसने मुझे तीसरी बीवी बना लिया। इसके बाद मुझे नहीं मालूम कि मेरी बहनों के साथ क्या हुआ। इसने लिखा कि शायद मेरी किस्मत में ख्वार होने के बावजूद ख्वारी नहीं लिखी गई। अब मैं तुर्की में हूँ और इस शख्स के साथ शानदार घर में ऐश व इज्जत की ज़िंदगी बसर कर रही हूँ। मुझे आपकी बहुत याद आती है। यूं तो मेरा शौहर बहुत अच्छा है, लेकिन इससे पहले वो मुझे आप लोगों से राब्ते की इजाज़त नहीं देता था, मगर आज मैं इसकी इजाज़त से आपको ख़त लिख रही हूँ और इसी ने ये ख़त आपको अरसाल किया है। लेकिन मैं आपसे फ़िलहाल मिलने से कासिर हूँ। दूसरी दोनों बहनों के बारे में मेरे खाविंद ने मालूम करने की कोशिश की थी। बस इसी कदर इल्म हो चुका है कि वो दोनों मुल्कों के कहबा खानों में पहुंचाई गई थी। आगे इनकी किस्मत क्या हुई खुदा को मालूम, मगर जालिम गुल्लाला और जमान खान ने चंद रुपयों की खातिर हमारे साथ बहुत बुरा किया। खुदा उसे जहन्नुम रसीद करेगा। खत में जैनब ने अपना नाम व पता भी लिखा था, मगर शायद वीज़े की दुश्वारियाँ या दूसरे मसाइल के सबब वो फ़िलहाल माँ को नहीं बुलवा सकती थी और खुद उसे वतन आने की इसके शोहर की तरफ से इजाज़त ना थी। बेटी का खत पढ़कर खाला के आंसू भरी आंखें भी चमक उठी। वो अपने बेटों के पास गई और मारिया का खत दिखाकर कहने लगी कि तुम्हारी एक बहन का सुराग मिल गया है। खुदा के लिए अब तुम किसी तरह से उसे वतन लाने की सबील करो या फिर मेरी इसके साथ मुलाकात का बंदोबस्त करवाओ। खाला की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बेटों ने भी खत पढ़ा तो इन पर सब यह हकीकत आश्कार हुई कि इनकी माँ ने कितनी बड़ी गलती की थी, बेटियों को गैर लोगों के साथ भेजकर। अफसोस भी हुआ, मगर इस वक्त तो माँ को तसल्ली थी। मगर कुछ दिनों बाद ही माजूरी जाहिर हो गई कि ऐसा मुमकिन नहीं है। हमारी ना कोई पहुँच है और ना ही असर वसूख है। दौलत काम करती है और हम दौलतमंद भी नहीं है। गलती तो आपकी है कि आपने क्यों किसी गैर पर एतबार किया और जवान बेटियां इन लोगों के हमरा कर दी। बेवा खाला का दुख और बढ़ गया। पहले 3 जवान बेटियों का बोझ कंधों पर था, अब इनके खोए जाने का गम पहाड़ जैसा था, जिसका बोझ इनका कमज़ोर दिल सह ना पाता था। बेटे तो खाला को दोष देते थे, लेकिन मैं समझती थी कि खाला से ज़्यादा इनके बेटों और बहुओं का कसूर है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में आज़ादी के रंग भरने की खातिर बूढ़ी माँ और जवान बहनों को तनहा छोड़ दिया था। आखिर इस वक्त इन्हें कोई ख्याल ना आया जब इनकी माँ और बहनें तनहा रह रही थी। बीवियों की खुशी की खातिर या इनकी वजह से मजबूर होकर कुछ बेटे वालिदैन की ज़ईफ़ी में अकेला छोड़ देते और अपने फ़राइज़ से गफलत बरतते हैं, जिसके नतीजे भी फिर बुरे ही निकलते हैं। यकीनन ऐसे बेटे और बहवें लायक सताइश नहीं होती। माशरा का फ़र्ज़ है कि वो इस किस्म की खुद गरज औलाद का मुहासबा करे और न इस किस्म के अलमियत तो जन्म लेते रहेंगे। बेवा वालदा और गैर शादीशुदा जवान बहनों को बेयार और मददगार छोड़ना किसी तरह भी काबिल माफ़ी अमर नहीं है।
اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ تمام والدین کی اولاد کو نیک ہدایت دے۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک، کمنٹس۔ اللہ حافظ۔